In a world where food is wasted daily, somewhere someone is sleeping hungry almost every day. There are people who decided not to ignore this and work for their dignity. Today, I am sitting with a woman who turned compassion into action and service into movement. She feeds thousands with dignity and love. She is the founder of the Jaipur chapter of Robin Hood Army. Hi Sonal, and we are so glad to have her here. Hi Priyanka, thank you for this opportunity for letting the people of Jaipur and others in India know about Robin Hood Army through your platform. We are so glad to have you here, Sonal, and thank you so much for inspiring us with your journey. So Sonal, tell us about Robin Hood Army. So Priyanka, Robin Hood Army is a volunteer-based organization. It was started in 2014 in Delhi by Neil, Anand and Arushi. And the whole purpose of Robin Hood Army, the main foundation of Robin Hood Army is to eradicate hunger. You'll be surprised to know that there are more people in India dying because of hunger than tuberculosis, AIDS and malaria all put together. Oh, is that? And imagine a person dying because of hunger and not a disease or anything else, Servicing through Robin Hood Army, when I heard about this concept, it actually made me realize that hunger is not a distant problem, it's really around us and we can cater to it. So, in fairy tales, you've heard about Robin Hood. Robin Hood used to steal from the ones who were rich and give it to the ones who were poor. We are law-abiding citizens, we don't steal, but the whole logic is this: we do not take any funds or money from anyone, but we want people who have a lot to contribute, to give to those who do not, who have lack of supplies. So that is why we call ourselves Robin Hood, and an army of volunteers of all age groups who come together. In India, Robin Hood Army is in more than 400 cities. Today, we are there in more than 13 countries. We have more than 2.5 lakh of volunteers with us all across the country. In Jaipur, we started this in October 2014, and it's been a beautiful journey so far. So glad to know about this. Sonal, when was the exact moment that you realized that I cannot ignore hunger anymore? So Priyanka, I believe the entire activity, the act of kindness, it's inculcated through childhood. As a child, during our birthdays and any celebration, our parents used to keep it very low-key for us. And for us, it was a ritual to go to either an old age home or a blind school and, spend time there. Even in my school, in the social service club, we were a part of giving and doing these things. But it wasn't really making a very big difference in that way. But I feel giving your time 5-10 minutes, an hour, or, preparing a dance for them or distributing food brings a smile to their face. Post that, when I was in Xavier's in Calcutta, I was the president of NSS, where we've actually spent time in villages. We've actually done a lot of work in the field of education, right? It was only when I shifted to Jaipur and, I joined my company, and Neil was a common friend, and, when he was traveling, he realized that hunger is a big problem, and we discussed, as friends, we were sitting and talking about it. We really realized that it's not a distant problem. Hunger is around us, and, we've never paid attention to it. And honestly, to begin an act of kindness, you don't have to have a lot of resource. You just need a big heart. Yeah. And through that, we realized that we really need to do something about hunger in our country, where we have so much of resource, but it's not going to the right places. That was my realization, that, we cannot avoid hunger. And probably there would be many other problems in this country, but we need to start fixing with one basic problem, which is hunger. It is, I think, the deepest, when we talk about dignity, humanity, a human dying because of hunger, or any living being dying because of hunger, challenges that entire thing, Yeah. So that is the first problem. When we talk of Maslow's theory, we say hunger is the base, food is the base, is the first thing. Roti, kapda और मकान, सबसे basic necessity है. तो खाना, अगर हम वो problem नहीं solve कर सकते, तो हम क्या ही कर रहे हैं? So we can say that smaller actions make bigger differences. 100%. As a mother, I feel it is very necessary to put this feeling of gratitude in your children from a very early age. Correct. As you started, आपको example वही set था.
और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हमारे जो घर में बच्चे हैं और हम भी आज भी, हम जो बड़े हैं, हम ना बहुत मुंह बनाते हैं खाने को देख के। हाँ. हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना, हमको ऐसा नहीं चाहिए। दूध हमने सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में उसको डाला होगा, दूध को बेसिन के अंदर। Right. मम्मी जबरदस्ती दे रही है, हमको नहीं खाना, पीना नहीं है, यू नो। सो दोज थिंग्स व्हेन वी वर डूइंग इट, प्रोबेबली वी नेवर रियलाइज्ड Yes. कि वो एक गिलास दूध जो आपको मिल रहा है ना, वो किसी आप के लिए basic बहुत necessity. थैंकफुल हो, और किसी और को मिलेगा उसके लिए इट इज लाइक अ सेलिब्रेशन, इट इज लाइक अ पार्टी, Right. राइट। तो वो कॉन्शियसली किसी को फील कराने की अब जरूरत आ गई है। अभी तक भी अगर हम नहीं कर रहे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। व्हेन वी आर आउट इन अ रेस्टोरेंट आल्सो, द वे वी ऑर्डर फूड एंड देन वी डोंट हैव द courtesy of even getting it packed, the food which is good, which we can eat ourselves, not झूठा ऐसा खाना नहीं, जो हम भी खा सकते हैं, हम उसको भी नहीं पैक करके किसी को देने की कोशिश करते हैं। उससे कौन लेके जाएगा, क्या ही होगा, बट that little one extra effort can bring a smile to someone's face. उस दिन वो आदमी हो सकता है भूखे पेट ना सोए। हाँ. So that is very important, you know. Lovely. Sorry. You know, this is a very good initiative. But did you ever feel scared or doubtful about doing this? So Priyanka, with whatever experience little bit I have had in my past, I've never felt doubtful or scared about it. It was very different because ना यहाँ पे आप एक organized structure में नहीं जा रहे हो। हम रॉबिनहुड आर्मी में जो काम करते हैं, हम बस्तियों में कर रहे हैं, हम स्ट्रीट लेवल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं बड़े रॉ होते हैं, है ना। उनको पता होता है कि व्हाट इज अ क्वार्टर, व्हाट इज विमल, है ना। वो आप उनके फ्रेंड बनोगे तो आपको पता लगेगा, वो आपको बताएंगे हम काला पाउडर लगा के स्ट्रीट में बैक करने जाते हैं, या वो कॉबलर का काम करते हैं। उनके पेरेंट्स उन बच्चों को एक एसेट के तौर पे देखते हैं कि ये बच्चा 300 रुपए दिन का कमा के लाना चाहिए। द लाइफस्टाइल एंड द अपब्रिंगिंग इज वेरी डिफरेंट। Hence there was a challenge there 100%, and it is still there today. You know, वो हर दिन के लिए जी रहे हैं, उनका कोई एस्पिरेशन ऐसा सच होता नहीं है। तो वो एक माइंड शिफ्ट करना, वो एक चेंज करना, उनको छोटी छोटी बेसिक चीजें सिखाना कि आप साफ रहो, हाथ धो के आओ, जो आपको खाना दे रहे हैं उनको धन्यवाद दें, आप भगवान या ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उनको आप धन्यवाद दें, आपको जो भी मिल रहा है उसके लिए। ये उनको सिखाना पड़ता है हमको। That's the biggest challenge. Yeah. It is challenging. वो जब स्टार्टिंग में हम जाते थे तो वो सब ऐसे हमारे गाड़ियों में या हमारे पास ऐसे आ जाते थे कि आपको लगता था कि माय गॉड मेरे को कुछ कंट्रोल कैसे करे, क्योंकि उनको लगता है कि सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट ना, जो पहले पहुंचेगा उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो अब वो एक लाइन में ही आएंगे, वो एक सर्कल ही बनाएंगे। तो वो सारी चीजों को करने के लिए टाइम लगा, मगर ऐसे कोई डर वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई स्कैर्ड नहीं थे हम। वी न्यू व्हाट वी आर डूइंग, वो भी ह्यूमंस हैं, उनको भी चीजें चाहिए, उनका एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर लाइक दैट। और बहुत चीजों में तो हम उनसे सीखते हैं, यू नो, वी लर्न सो मच फ्रॉम देम। उनके पास अभाव है, उनके पास कमी है, फिर भी वो इतने खुश रहते हैं, और हमारे पास सब कुछ होके भी हम कोई सैडनेस या डिप्रेशन का रीजन खोज लेते हैं। एक्चुअली ये जब हम वॉलंटियरिंग करते हैं, हम ये ड्राइव्स करते हैं, हम अपने अंदर बहुत कंप्लीट फील करते हैं, और हमें पता लगता है कि the things that we are crying about is nothing in front of the problems that they are facing every day, and then by that also they are still so strong, and that itself is such a beautiful learning. So no question of feeling scared. Sonal, tell us about one child or a family that changed your life forever in this journey. So Priyanka, very tough to pinpoint one child or one family. Honestly, my maximum time as a volunteer I've spent in Bais Godam, C Scheme Basti. So I've had multiple experiences there around that time, which has stayed with me as a beautiful memory. I remember there was this one particular boy called Sandeep. I'm sure he would be there even now. बच्चे आते जाते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं। उसको मैं मिनी अजय देवगन बुलाती थी जब मैं उससे मिलती थी। एंड संदीप, यू नो, वो सारे कियोस्क में ना होता है ना, एक आता है जो आपको हेल्प करता है। तो संदीप मेरे लिए उस बस्ती का वो हेल्पिंग हैंड था, जो मुझे हेल्प करता था कि हाँ मैं दीदी हम ऐसे इसको रखते हैं, उनको यहाँ बिठाते हैं, उनको डांट लगा के सबको अरेंज करता था। ही वाज आल्सो अ चाइल्ड बट ही वाज वेरी हैप्पी। और आई रिमेम्बर हमको एक कंट्रीब्यूटर स्पॉन्सर मिले थे जो साइकिल्स दे रहे थे। तो हमने जब संदीप को भी एक साइकिल दिया, ही वाज सो हैप्पी। और वो ही यूज्ड टू पॉलिश शूज, को उसके पापा पढ़ने नहीं देते थे, उसको जाके शू पॉलिश ही करके आना पड़ता था।
तो my experience interaction with Sandeep definitely brought in a lot of fondness. Like I was just saying कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमको काफी कुछ सीखने को मिला. There have been experiences जो थोड़े sad भी रहे हैं. जैसे अभी recent experience है विद्याधर नगर बस्ती में, there is this girl जो missing है. So you know, by the time we got to know it was quite late. But हमारे volunteers इतने actively वहाँ जाते हैं तो पता लग गया. They complained, FIR उसके लड़की के पापा ने किया भी, हम फॉलो अप भी कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली अभी तक कुछ हुआ नहीं है. तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जिसमें ना जो वॉलंटियर्स एक्टिवली, क्योंकि वो एक पार्ट बन जाते हैं. Yeah, you get emotionally attached. करेक्ट. सो यू नो व्हेन अ गर्ल गेट्स मिसिंग, इट जस्ट शेक्स यू अपार्ट. आपको लगता है क्यों, व्हाई डिड दैट हैपन. ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आएंगे आपको, आपके लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगी. जैसे मुझे ध्यान है पहले जब मेरे पास इतने वॉलंटियर्स नहीं थे ना, तो मेरा बस एक नियम था कि हर संडे कुछ भी हो जाए, मैं बनाना, समोसा, ब्रेड, मिठाई कुछ भी लेके गाड़ी में, मैं अगर बस्ती नहीं जा पा रही तो मैं रोड में घूमूंगी और जो भी मुझे 40-50-100 लोग मिलेंगे, आई कीप गिविंग उठ के. तो मुझे ध्यान है एक जगह पे मैं रुकी, एक बच्चा आया और वो मुझसे पैसे मांग रहा था. दीदी 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो. मैंने उसको बोला मैं 10 रुपए नहीं दूंगी, आप ये पैकेट लो, उसमें पैटीज है, बनाना है, एवरीथिंग है. हम कोशिश करते हैं कुछ न्यूट्रिशनल भी डालें उसके अंदर. तो आई वॉज गिविंग, बोलते नहीं ये नहीं चाहिए, पैसे ही चाहिए. तो उस टाइम एक बार खराब लगा कि यार हम इतनी कोशिश करते हैं, यू नो व्हाई मनी. आई अंडरस्टैंड मनी इज इम्पोर्टेंट, पर मुझे पता है वो मनी इट्स ऑल अ रैकेट, यू नो दैट्स फॉर अनदर एपिसोड ऑफ योर्स, बट आई डोंट वांट टू गिव मनी, राइट. उस टाइम ना मैं बुझते जा रही थी कि सोनल क्यों कर रहे हैं अपन, ये किसके लिए कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग दिस फॉर. एंड आई एम नॉट जोकिंग, विद इन 10 seconds अनदर चाइल्ड केम रनिंग टू माय कार, सर दीदी आप मुझे दे दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है. Yeah, you got your answer. I got my answer. So you know कभी कभार ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आपको निराश करे ना, डोंट गिव अप. My only thing is never give up, because आपके जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो सोचते हैं और आपको करना ही पड़ेगा. For one bad experience or anything, don't consider सारे लोग ही ऐसे हैं. That is very important. I'll keep that in mind. Have you ever cried after a drive, and what made that moment so emotional? If you have. So Priyanka, maybe I'm not a very emotional person. So I have honestly never cried after any of my drives. Today, you know, Robin Hood Army has become a very big platform for people to kind of associate, link and do something, make a difference. Because इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम पैसे नहीं लेते. You know, it's a zero fund organization and it's a volunteer based organization. So आदमी कोई भी उम्र का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे पास ऑटो ड्राइवर्स भी हैं जो हमारे साथ काम करते, कंधे से कंधा मिला के. हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं, हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, हमारे पास हर कॉलेज के बच्चे भी हैं, सब लोग ही हैं, है ना. मुझे खुशी मिलती है इस बात की कि जयपुर में आई वॉज एबल टू एस्टैब्लिश अ प्लेटफॉर्म जहाँ इतने लोग आज जुड़े हुए हैं. और ये जो लोग जुड़े हुए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं हमारे रॉबिन हुड आर्मी में, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे पुराने फ्रेंड, फैमिली ये हो जो मेरे वजह से कुछ कर रहे हो. दीज आर ऑल स्ट्रेंजर्स. भगवान आपको ऐसे स्ट्रेंजर्स से मिला देता है जो कॉज में आपके साथ जुड़ते हैं, जो खुद आपके जैसा फील करते हैं. Destined to be meeting. Correct. And that gives me happiness and joy. You know, there is so much we are doing in Jaipur chapter by itself. आज तक हमने मे बी 80 लाख लोगों को खाना खिला दिया होगा. हमने लास्ट ईयर ही करीबन 7-7.5 लाख लोगों को खाना खिलाया है. हमारे अकेडमी में खाने के अलावा हम इन बस्तियों में जहाँ हम बहुत रेगुलरली जाते हैं, जहाँ वॉलंटियर्स हैं, वी ऑल्सो रन एन अकेडमी वेयर वी आर टीचिंग द किड्स, ऑल्सो गेटिंग देम इनटू स्कूल एडमिशंस, also organizing co-curricular things like dance, music, self-defense. तो जिसको जो भी आता है और वो सिखाना चाहते हैं बच्चों को, we organize all of that also. So you know, हमारे पास एक्टिवली अभी 400-450 बच्चे हैं अलग अलग चैप्टर्स में. तो जयपुर में there are 10 chapters. हर एरिया एक चैप्टर है, जैसे प्रताप नगर, बनी पार्क, सी स्कीम, वैशाली नगर. हमारा एक रूरल चैप्टर भी है मुंडोता में, जहाँ पे एक प्रॉपर स्कूल चल रहा है, जहाँ 250 गर्ल्स पढ़ते हैं. So technically इतना कुछ हो रहा है कि honestly it's only a matter of joy and happiness. You know, that I experience personally on a daily basis. खुशी मिली. बहुत खुशी, and consistent खुशी. So many people think that you need money to do all such charity stuff, and also if you want to join Robin Hood Army, can a normal person join it?
So Priyanka, answering your first question, ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी करने के लिए पैसे चाहिए या रिसोर्सेज चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास वॉलंटियर्स जो हैं वो विदाउट मॉनेटरी, विदाउट कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल एजेंडाज, हम ऐसे ही वॉलंटियर्स लाते हैं। रॉबिनहुड आर्मी इज अ प्योर प्लेन प्लेटफॉर्म। वीव हैड पीपल जो कोई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम एक जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है। हम कहते हैं हमको आपका टाइम चाहिए, आप आइए। रविवार एवरी संडे हमारा ड्राइव्स होता है। आपके घर या ऑफिस के पास वाले चैप्टर में आप ज्वाइन करिए। आपको 1 घंटा देना है, आप कुछ भी मत लेके आइए, आप बस स्वयं को लेके आ जाइए और आपको फिर भी इतना अच्छा फील होगा वहाँ पे खाना देने में, वहाँ लोगों से बात करने में। और हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है जो हम उन बच्चों को सिखा सकते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं ना, ये वो बच्चे हैं जिनको नहीं पता स्टार्स क्या होते हैं, मूवीज क्या होती है। इनको शायद सलमान खान, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, they wouldn't know all that, you know. So they are not in awe of these stars. उनके लिए आप ही स्टार हो, आप ही सैंटा क्लॉज हो, आप ही सब कुछ हो। तो एक्चुअली हम ऐसा सोचते हैं that you know we need a lot of resource, but you need a big heart, and that's it. To do any act of kindness, you just need one big heart, and everything else will happen. That is the first thing I want to tell you. I pinch myself when I think about Robin Hood Army in 2014, because when we started it, honestly, आप एक सपना देखते हो उसको बड़ा करना। एटलीस्ट मैंने नहीं देखा था ये। मैंने बस शुरू कर दिया था कि मुझे हर रविवार 50 या 100 लोगों को खाना खिलाना है। मेरे साथ बहुत बार मेरे दोस्त जुड़े, बहुत बार नहीं भी जुड़े, बहुत बार मैंने ड्राइव्स अकेले किए। आज मुझे बहुत खुशी मिलती है सोच के कि कम से कम जयपुर के आप मान लीजिए 500 लोग तो एक्टिवली एट एनी पॉइंट इन्वॉल्व होंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट? सो यू डोंट नीड मनी, यू जस्ट नीड योरसेल्फ, यू नीड योर हार्ट, एंड एवरीथिंग एल्स फॉलोज. For people to join Robin Hood Army, it's very simple. We have a WhatsApp number that I will share with you, and you can put it on your page. तो उसमें आप WhatsApp पे हाई लिख दीजिए और एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. आपको खाना देना है तो वो उधर लेके जाएगा, आपको ज्वाइन करना है तो उधर लेके जाएगा. सो एवरीथिंग एल्स आपके हाई के बाद वो इट विल गिव यू प्रॉम्प्ट्स जिससे आप चैप्टर, सिटी, कौन से शहर में करना है, सब कुछ आ जाएगा. तो दैट इज अ यूनिवर्सल नंबर फॉर द होल ऑफ इंडिया, राइट? दूसरा तरीका है robinhood.army.com पे आप जाके वहाँ पे यू कैन रजिस्टर एज अ वॉलंटियर. दैट रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट ताकि हमारे पास डेटा रहे हमारे सारे वॉलंटियर्स का फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं. सो दैट इज एन ईजी वे, एंड एनीवन एंड एवरीवन इज वेलकम टू जॉइन रॉबिनहुड आर्मी. और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, आप रॉबिनहुड आर्मी ना भी ज्वाइन करो तो भी आप अपने आसपास जो आपकी बस्ती है या स्ट्रीट्स हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं, आप अपने गाड़ी से घर से निकलते हो तो अपने स्कूटी में, अपने गाड़ी में आप 2 केले ले जाओ एक्स्ट्रा, आप पार्ले जी का बिस्किट ले जाओ, आप 2 सैंडविच ले जाओ, 2 पराठे ले जाओ, आप वो ही दे आओ. आप ये 5 रुपए 10 रुपए देना बंद कर दो, आप ये दे दो. आदमी को भूख लग रही है, उसको खाना दे दो, वो भी बहुत है. So stop involving money, just include good actions. Yeah, share your food, share your meal. I feel that is the deepest act of humanity. You know, it's a question from my heart. Being a mother, how can I connect my child to join this? And फर्क पड़ता है क्या? Like, does it changes a child's behavior if they are coming? You must have seen children coming, that's why. Right. सो प्रियंका, बच्चे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. आप उनको एज अ वॉलंटियर भी रजिस्टर कर सकते हो. आप अपने आप को रजिस्टर करके उनको साथ में भी ला सकते हो फॉर द फर्स्ट फ्यू ड्राइव्स, राइट? हमारे जयपुर में ही बहुत से ऐसे ड्राइव्स हुए हैं जिसमें बच्चे आते हैं. मेरे खुद के दोस्त के बच्चे आते हैं. सो यू नो, इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस. पहली बात तो उनको ये समझ में आता है कि जो हमको मिल रहा है उसको फॉर ग्रांटेड मत लो. जब वो देखते हैं क्या हो रहा है, they would understand that they have to be thankful, there has to be a feeling of gratitude. उनको उनके लाइफ में कभी कुछ नरमी गर्मी महसूस हुई, कभी कुछ कम ज्यादा होगा, तो उनको ये स्ट्रेंथ देगा कहीं ना कहीं. You know, when they do these acts of kindness, they will know कि हमारे पास जो है भगवान ने हमको बहुत दिया है. उनको एक शेयरिंग की हैबिट आएगी. हम बहुत ऐसे आसानी से बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग. करता कौन है? यू नो, आप एक रबर उठा के अपने एक पेयर को, फ्रेंड को दे दो जिसमें ऑलरेडी बच्चे नहीं,
आप दे भी दो तो उस पास हाँ. तो ऑलरेडी बहुत है. हाँ. आजकल के बच्चों के पास ऑलरेडी एवरीथिंग इज इन टू मच, यू नो, अबंडेंस, yes, it is. राइट? शेयरिंग इज केयरिंग, इन रियलिटी इज दिस वेयर आप अपना एक टॉय, बोर्ड गेम एंड स्पेशली बहुत सारी चीजें हम घर पे यूज नहीं करते. हाँ. वो अच्छी, हमारे रॉबिनहुड आर्मी में एक रूल है, हम टूटा फूटा फटा चीज नहीं, वी डोंट गिव दैट. इट हैज टू बी एग्जैक्टली व्हाट यू कैन यूज योरसेल्फ, राइट? वैसी चीज बहुत होती है घरों में जो हमारे काम ही नहीं आ रही, वो पड़ी है. आप वो उठा के उन बच्चों को दे दो, आप एक बोर्ड गेम ही ले जाओ उनके पास, आप उनको वही सिखा दो खेलना. आप सोचो व्हाट जॉय यू कैन ब्रिंग, एंड आप भी इतना खुश फील करोगे कि ये 4 बच्चे जो है ना, इनकी जिंदगी में आज मैंने बहुत खुशियां दी है. So even the kids, you know, when they go, they spend time there, they understand things like this. It will 100% make a difference in their life. It'll actually, build up a character of the child. Yes, absolutely. And that is the need of the hour. Absolutely. With everything that going around us, we need that. We need more compassion. You know, we need more sensitivity. We want people to care in genuineness, care about each other. Yeah. And just not your family. You care about the community. You care about the humans around you. And that is humanity at the end of the day. So I feel, and I would like to tell your listeners, it is important. आप रॉबिनहुड आर्मी के साथ करें, आप कैसे भी करें, आपको अपने बच्चों के डेली एक्टिविटी में वीकली वंस, जैसे भी आप उनको टाइम निकाल सके, यू नीड टू पुट देम इनटू समथिंग लाइक दिस. इट इज इम्पोर्टेंट. जितना स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है. जितना एक्स्ट्रा करिकुलर इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके इमोशन बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है. करेक्ट, बिल्कुल. आई वुड लाइक टू टेल दिस टू द मदर्स. Yes, you're right. You're absolutely right. It will help them to become stronger humans in future and also more compassionate. True. Keeping apart all the work, but then what keeps you going through all this? जो exhaustion होता है, do you feel exhausted or somewhere stuck कि क्या कर रहे हैं, क्या होगा? This is a very important question I would like to know. So Priyanka, I don't feel exhausted. This comes to me naturally. जैसे I work for a pasta company, but मुझे cooking नहीं आती. That doesn't come to me naturally. Yeah. है ना? वो मुझे exhausting लगेगा अगर आप मुझे बोलोगे अभी किचन में खाना बनाओ. मेरे लिए रॉबिनहुड आर्मी या उसका कोई भी काम exhausting नहीं है. Honestly, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतना बड़ा होगा, इतने लोग हमसे जुड़ेंगे. आज हमारे पास बहुत एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है. जैसे आप एक कंपनी रन करते हो या एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, हर चीज एक सिस्टम और प्रोसेस से होता है. यू नो, वी हैव 2 सिटी रेप्स, हमारे 10 चैप्टर्स है, हर चैप्टर में एक रेप है. वी हैव सोशल मीडिया रेप, वी हैव अ वॉलंटियर मैनेजमेंट रेप, वी हैव रेप्स जो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन या पार्टनरशिप्स करते हैं. तो हम रेस्टोरेंट से जुड़ना चाहते हैं, जिन लोग के पास भी एक्स्ट्रा फूड है हम उनसे जुड़ना चाहते हैं. हमारा एक एडहॉक टीम भी है जो रात को कभी भी कॉल आता है कि एक्स्ट्रा खाना रखा है वेडिंग्स में या पार्टीज में, तो अगर हम कर पाते हैं तो हम वहाँ जाके खाना लेके भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. तो ऐसा नहीं है कि इसको, लकीली ये इतना सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बन पाया है जिसकी वजह से अगर आप चीज़ों को ढंग से करें तो कभी वो एग्जॉशन लगेगा ही नहीं. प्लस इट्स माई पैशन, सो दैट्स व्हाई आई डोंट फील एग्जॉस्टेड अबाउट रॉबिनहुड आर्मी और एनीथिंग अराउंड दैट. It comes naturally, and I think that answers your question. Yeah, so you found your calling and yes, you've planned it nicely. Yes, and I still feel there are miles to go before, you know, I would say that we've done something. बहुत कुछ करना है जिंदगी में. रॉबिनहुड आर्मी के जरिए हमने बहुत लोगों की जिंदगी में ना सिर्फ खाना और एकेडमी के अलावा भी चीजें की हैं. व्हील चेयर, यू नो, वी गॉट सर्जरीज डन. बहुत सारी ऐसी चीजें भी की जिसने एक्चुअली लाइफ को चेंज किया है, उसको बेटर बनाया है. बट मुझे फिर भी लगता है कितना कुछ है करने को. एंड इट्स गुड, भगवान ने हमको उधर चूज किया है कि हम कर पा रहे हैं. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग. सो आई थिंक एग्जॉशन से ज्यादा आपको बूस्टिंग मिला है. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बूस्टिंग मिला है और 100% चार्ज्ड है बैटरी अभी भी. इट्स अ बिट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, सोनल. People love to click pictures of the food they are eating, but कहीं ना कहीं they feel uncomfortable in feeding the hungry. Not always, but in majority. Is that so? या ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो प्रियंका मुझे ऐसा लगता है बहुत बार ना हमको अवेयरनेस ही नहीं है.
Yeah. यू नो लाइक आई सेड बचपन कॉलेज वगैरह में हमने जो किया बहुत काम किया एजुकेशन में, ओल्ड एज होम, ब्लाइंड स्कूल, ये वो हम करते थे. शायद वो अवेयरनेस कॉन्शियसली पता होते हुए भी होता है ना, सामने रखा है चीज बट हमको दिख नहीं रही. हाँ. तो हमको दिख रहा है लोग सड़कों में पैसे मांग रहे हैं, हम पढ़ते भी हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ये सब बट वो कॉन्शियसली हिट नहीं करता बहुत बार लोगों को. और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, और ऐसी चीजों के थ्रू अगर हम कुछ लोगों को बता पाए, वो कुछ और लोग को बता पाए, जैसे मुन्ना भाई का झप्पी, हर 10 लोग 10 को बताएं, 10 को बताएं. आई थिंक एक बार किसी को ये बात समझ में आएगी ना तो वो इग्नोर नहीं करेंगे. हाँ. वो उनको समझ ही नहीं आ रहा. हाँ, right? वो बेसिक प्रॉब्लम शायद पता ही नहीं चल रहा है कि हंगर इज एज यू सेड इट्स इन फ्रंट ऑफ देम बट मे बी दे नॉट सीइंग इट, एंड दैट इज पॉसिबल, राइट? बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ है. हम कपड़े दे देते हैं, चलो ये कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, हम रियल हिट नहीं कर रहे प्रॉब्लम. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सभी करते हैं. हमें कुछ अच्छा खाना मिलता है रेस्टोरेंट में, किधर भी है, our friend is making something, we click a picture, and then we don't care कितना बचा, क्या हुआ, what happened, what didn't happen. उतना ही ऑर्डर करो, वापस मंगा लो. आप अपने प्लेट में भी फॉर दैट मैटर आप थोड़ा सा ही लेके ट्राई कर लो, फिर आप बोलो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पूरा ही छोड़ दे रहे हो. डोंट डू दोज थिंग्स, बिकॉज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो किसी के लिए बहुत कुछ है, राइट? सो आप बिल्कुल फोटोज लीजिए, enjoy your food, enjoy your meals, just share it and don't waste it. That's the only thing. Same ways as you're taking photos, share the food also. Correct, 100%. Share your meals. It will give you the maximum delight. Sonal, I myself, I'm so inspired by talking to you, and I'll keep the thought in my mind also of sharing. But would you like to give a message to the young people watching you today? एक छोटी सी चीज जो उनको इंस्पायर करे आगे इस चीज को ले जाने के लिए. I would like to tell everyone that there is no particular day when you have to start. Just begin. Don't think what you're going to achieve. Just walk on the path and everything will follow. These are small efforts, small contributions that go a long way. Make it a community practice. Involve people of your family. Talk about it as much as we talk about movies, hobbies, you know. Just make it a part of your lifestyle. And you will see what difference you're making, because we want to coexist in a world where there is dignity. Right? So no matter what kind of social service you put yourself through, just start. Begin with small acts, and you don't know what difference you can make, and the smiles you can bring. Just begin. That's my message. And you know, I feel somewhere the generation today is a bit conscious of their actions. So conscious होना अच्छा है, but अगर कुछ अच्छा thought है तो you have to give it a push, right? Correct. आप रुको मत. हम सोचते कल करेंगे, आज वो फ्रेंड नहीं आ रहा, तू नहीं करेगी. मैं आपको बता रही हूँ, I started. मेरे पास जब कोई भी नहीं था, 50 केले खरीदे और गाड़ी लेके निकल गए. इतना ही करना है. Start with the basic. किसको मालूम था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे? We'll have so many people जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, right? वो अपने आप से जुड़ गए. तो just begin in your life and things will happen on its own. आप इनफैक्ट सोशल सर्विस क्यों, काम में भी, कहीं पे भी, just begin. And this is important. Sharing is important, right? Do whatever you think is good for you. Robin Hood Army या कोई और प्लेटफॉर्म, आपको जो चीज की कॉलिंग आ रही है, बट कुछ तो करो. आपको भगवान ने इतना दिया है, थोड़ा सा शेयर करो. How amazing is that? Okay, so let's do a quick rapid fire with you. Let's do it. Hunger in one word. Painful. Kindness in one word. Ocean. Lovely. Your biggest motivation. In one word. Parents. Nice. Your biggest dream. Hunger-free India. Message to the youth. One word. Go for it. Message to your parents. Thank you. One habit everyone should adopt. Sharing. One thing India needs more of. Compassion. Great. Thank you, Sonal, for teaching us one thing, that one person's intention can change a lot of things. Priyanka, honestly, it's not one person's intention.
God gave me the platform to start RHA in Jaipur, but RHA would not have been what it is without the team. So it takes a team to move the mountain, and the more the merrier. Whoever wants to join can get in touch with me, can join through our website or the WhatsApp number, and let's serve Jaipur together. Absolutely. And to everyone watching this episode, don't just like it, join, volunteer, teach, and spread love. Thank you so much, Sonal, for inspiring us and giving a purpose to our lives. Thank you, Priyanka. Means a lot. Thank you.